اپنی شناخت جو ہے آپ کروائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لا اسکول میں جائیں. ایک سائنس اور انجینئرنگ والے, اور بزنس اسکول والے, اور ہیومینٹیز اور سوشل سائنس والے. تو سب لوگ بہت اچھی بات. تو آپ کون ہیں تو ہو گیا. میں کون بتائیے. ڈین آف ٹھیک ہے, سب متفق ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور میرا نام کیا ہے؟ آپ میں سے تو جب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں کون ہوں, تو وہ سیدھا سادہ سا سوال آپ نے جواب دے دیا, آپ نہیں ہیں. اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ میں کون ہوں, تو پھر سوال ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے میں کون ہوں, تھوڑا سا گہرا ہو جاتا ہے سوال. کسی سے اسی طرح گہرا سوال کیا تھا تو وہ اس نے کہا سر اتنی گہرائی میں نہ جائیں, کیوں تو ڈوب جائیں گے. اگر تیرنا آتا ہوگا تو نہیں ڈوبیں گے نا, ڈوبیں گے تو اسی وقت جب تیرنا نہیں آتا. کیوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو یہاں آئے ہیں تو تیرنا سیکھنے کے لیے. کہ اس طرح کے سوال جو ہیں کہ میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, میرا مقصد کیا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, یہ تو آپ کے ساتھ چلتے رہے. اور آپ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اپنی زندگی جو ہے بالکل سطحی طور پہ گزار دیں گے, سپرفیشل. اور اگر گہرائی میں جانا ہے تیرنا سیکھنا پڑے گا, نہیں تو ڈوب جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 سال جو ہے آپ کو تیرنا سیکھنا ہے سب کو, چاہے آپ لا اسکول میں ہوں, چاہے سائنس کے اسکول میں ہوں, چاہے بزنس کے اسکول میں ہوں, اور چاہے ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے اسکول میں ہوں. آپ کو تیرنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا, کیونکہ ان سوالوں سے آپ کا کوئی بچاؤ نہیں ہے. یا نہیں بتائیں, کوئی بچ سکتا ہے ایسا؟ نہیں بچ سکتا نا. تو آئیے آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ کون فائل لایا جا رہا ہے؟ ارے آپ بیٹھیے ابھی تو لیکچر شروع ہے. تو یہ آپ جو دیکھ کے آئے ہیں, آج کا عنوان کسی کو معلوم ہے؟ آپ نے ایجنڈا پہ دیکھا کیا عنوان ہے؟ کچھ سوال کچھ جواب. یہ آج کا وہ مفہوم بھی آج کا نہیں مضمون. یہ پچھلے سال جو تھا وہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ آپ کی تقریر کا عنوان ہوگا کچھ سوال کچھ جواب. اور اس کی کچھ نوعیت ایسی تھی کہ وہ 1-2 مہینے پہلے میرے پاس آئے تھے کہ آپ کس چیز میں بول رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی وہ ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں ہے, آپ یہ لکھ دیجیے کچھ سوال کو جواب, پھر میں سوچوں گا. تو انہوں نے لکھ دیا. اور اس بار انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا لیکچر اتنا مقبول ہوا تھا کہ آپ وہی دوبارہ دے دیں. ان سے میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی ایسا استاد تو نہیں ہوں جو اپنے 50 سال پرانے نوٹ جو ہے ہر سال ان کو دوہرا دوں. ٹھیک ہے, میں کم علم ہوں, مگر اتنا بھی کم علم, وہ تو مجھے بھی بھول چکا ہے. کہ ایسے مجھے اس کا عنوان یاد رہ گیا. اس کا عنوان تھا والدہ محترمہ کا طوطا. پچھلے سال کا عنوان والدہ محترمہ کا طوطا تھا. اور اس کا عنوان اس وجہ سے تھا کہ جو ناظرین بیٹھے ہوئے تھے طلبا, ان سے میں نے پوچھا, وہ ایک شعر کا مصرع میں نے پڑھا اور میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کن لوگوں کو دوسرا مصرع یاد. تو
تو کوئی ایک دو ہاتھ اٹھے. ان سے کہا بھائی میں نے کہا کہ جو میری والدہ کا طوطا تھا اس کو 12 شیر آئے, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی. اور پھر خیر وہ اب تو والدہ بھی نہیں رہی اور وہ طوطا بھی ان کے غم میں فوت ہو گیا. مگر بہرحال تو پھر میں نے کہا کہ آپ میں سے جو لوگ ایک سال میں 12 شعر یاد کر لیں گے ان کے لیے میرے دفتر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے, ان لوگوں کو پریفرینشیل ایکسیس ہو. تو کچھ 20-25 لوگوں نے یاد کر لیا. تو آپ بھی اگر یاد کر لیں گے 12-15 شعر تو میرا دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ کھل جائے گا, 5 بجے کے بعد بھی کھلا رہے گا. تھوڑا سا انسینٹیو ہے آپ کے. مگر بہرحال آج کا موضوع یہ نہیں, آج کا موضوع ہے آپ کو لکھ دیتا ہوں میں. آج کا موضوع ہے بنیاد کچھ تو. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بنیاد کیا ہوتی ہے. فاؤنڈیشن. اوکے, تو اور بنیاد کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ کو تو لمحے میں وقت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو پہلے سے ہی تعلیم یافتہ ہے. بنیاد کی یہی اہمیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کوئی بات کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل بے بنیاد بات کریں. یہ کوئی فاؤنڈیشن بنیاد ہے چیز. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پہ آپ کتنی بھی خوبصورت عمارت بنا دیں وہ گر سکتی. کوئی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں جب وہاں وہ زلزلہ آیا تھا تو وہ ایک بلڈنگ جو تھی مرگلا ٹاور گر گئی. بہت سی بلڈنگ کھڑی رہی تھی. اسی زمانے میں بھی اسلام آباد میں تھا اور پھر میں اس کے بعد کشمیر میں میں نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی زیادہ تر جتنی بھی سرکاری بنی ہوئی عمارتیں تھیں, اسکول, اسپتال, ان میں سے 80-90% گر چکے. اور جو پرائیویٹ لوگوں نجی عمارتیں بنی ہوئی تھیں اس میں سے جو غریب لوگوں کی عمارتیں تھیں وہ گر گئی تھیں, اور جو کھاتے پیتے لوگوں کے گھر تھے وہ. یہ ظاہر ہے کہ جو سرکاری عمارتیں تھیں جو غریب تھے وہ بیچارے تو بنیاد میں اتنی پیسے لگا ہی نہیں سکتے تھے, گر گئے. اور مگر جو سرکاری عمارتیں تھیں وہ اس لیے گر گئیں کہ ان کی بنیادیں کھوکھلی تھیں. اگر آپ سیمنٹ کی بجائے ریت ڈالتے ہیں تو بنیاد کھوکھلی ہوگی, ذرا سا دھچکا لگے گا تو گر گئے. ٹھیک ہے, تو اب جو یہی چیز جو ہے میں آپ کو اس کی دلالت ایک سائنس کے تجربے سے کراتا ہوں. سائنس کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم اپنی ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس کی بات بھی جو ہے وہ سائنس کے ذریعے کرتے ہیں. سائنس سے ہمیں, حالانکہ ہم اسکول میں ہیں, سائنس سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہے. بیر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں, شاباش شاباش. یار تم تو بڑے ہوشیار ہو. عام طور پہ جب کوئی بورڈ پہ یہ لکھ دیتے ہیں تو ہمارے لوگ اس کو بیر پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں یار بیر تو جو ہے وہ ایک دری ہے, بیر جو ہے دشمن, پنجابی میں کہتے ہیں بیری ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں کوئی سائنس سے بیر نہیں. تو ہم ایک سائنس کا تجربہ کر کے آپ کو بنیاد کے بارے میں دیکھیے. یہ 4 چیزیں میں نے یاد رکھی, یہ سب مارکرز ہیں. پہلے یہ ہے, اس کو میں نے ذرا سا جھٹکا دیا تو گر گیا. کیوں گر گیا؟ بنیاد نہیں ہے. اور
جو لوگ فزکس پڑھ کے آئے ہیں وہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا اور تفصیل میں جائے کہ یہ کیوں گر گیا. سینٹر گریوٹی کا کیا ہوا؟ وہ ایزیلی چینج ہو گئی. نہیں ویٹ کم نہیں ہے. ویٹ کم ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا اور دھکا دیں. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سینٹر گریوٹی بھی ہے, ویٹ بھی ہے. ہاں صحیح ہے. جیسے کم کیا فورس تو میں آپ پہ بھی اپلائی کروں گا تو آپ نہیں گریں گے. کوئی اور وجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت ہوشیار لوگ ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے لمس میں دیکھیے, اگر میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں ایسے اور کوئی مجھے دھکا دے گا میں گر جاؤں. 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوں گا تو زیادہ مشکل سے. ٹھیک ہے, اور اگر میں ایسے کھڑا ہو جاؤں تو اور بھی. آپ نے دیکھا جب وہ یوگا کرتے ہیں یا پہلوان ہوتے ہیں وہ دیکھا ایسے. ٹھیک ہے, تو جتنا بیس وائڈ ہوگا, اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس سے اگر آپ ایک پرپینڈیکولر گرائیں, فتح عمودی پرپینڈیکولر گرائیں تو جب تک وہ پرپینڈیکولر بیس کے اندر ہوگا تو چیز کھڑی رہے گی. جیسے ہی وہ بیس سے باہر ہو جائے گا, اس چیز کو جب میں ایسے کرتا ہوں تو اس کا یہاں سینٹر آف گریوٹی, یہاں سے میں پرپینڈیکولر گراؤں گا تو وہ باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو چیز گرے گا. آپ نے دیکھا ہے بہت سے, آپ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ آئیفل ٹاور کی تصویر دیکھی ہوئی ہے وہ دیکھیں اس کی شکل کیسے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا کچھ, بیس اسی لیے چوڑا کیا. یہاں سے سینٹر آف گریوٹی جو ہے اگر ہوا آئے اور وہ ایسے ٹلٹ کرے تو یہ سینٹر آف گریوٹی جتنا بھی ٹلٹ کرے اندر ہی رہے. اس کو جب میں ذرا سا ٹلٹ کر رہا ہوں اس کا سینٹر آف گریوٹی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیں, جتنا دھکا میں نے اس کو دیا تھا اتنا ہی دھکا میں اس کو دے رہا ہوں. یہ نہیں گر رہا. ہاں صحیح ہے نا. اس کا چھوٹا سا ایک بیس ہے. صحیح ہے. یہاں تک کہ جب گیا اس کا سینٹر آف گریوٹی اسی بیس کے اندر ہے. ذرا سے اس کو اور دھکا دوں گا, بیس بہت چھوٹا ہے. اس کا بیس اس سے بڑا ہے. نہیں گر رہا. تھوڑا سا دھکا دوں گا گر جائے. اب یہ بتائیں اتنے بڑے بیس کے ساتھ کیوں گر گیا؟ میٹیریل اور ویٹ بہت کم. صحیح ہے. یہ کھوکھلا بیس ہے, بالکل کھوکھلا ہے. لگتا بہت بڑا ہے, کھوکھلا بیس ہے. یہ اس کو گرانا بہت ٹھوس ہے. ٹھیک ہے, بہت ٹھوس. یہ نہیں گرے گا. یہ تو خالی ٹیپ سے جوڑا ہوا ہے تو ہل رہا ہے. صحیح, اگر یہ اس کے ساتھ یکجان ہو تو اس کو گرانا بہت مشکل. ٹھیک ہے, تو آپ کا 4 سال کا سفر جو ہے لمس کا وہ یہ سفر ہے. یہاں سے شروع ہوں گے آپ. 1 سال کے بعد جب فریشمن ایئر ختم ہوگا آپ کی اتنی بنیاد بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کے پاس 2 راہیں. 4 سال کے بعد آپ کا بیس تو بن جائے گا بڑا, لیکن وہ بیس بالکل کھوکھلا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ بس ادھر ادھر کے کورس لے لیں گے, کچھ فارسی لے لی, کچھ یہ لے لیا, تو بیس تو ہوگا مگر کھوکھلا بیس. ایسا ٹھوس بیس بنانا ہے. آپ کو کوئی جتنا مرضی گرانے کی کوشش کرے آپ گرے. سمجھ گئے؟ یہ آپ دیکھ لیں, یہ 4 سال کا سفر ہے آپ کا. یہاں سے آپ شروع ہو رہے ہیں اور یہاں تک آپ. ٹھیک ہے, اوکے.
देख सकते हैं, ये मार्कर आप देख सकते हैं, तो हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। इमारत है उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, उसको भी हाथ लगा सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे भी अगर आप चाहें तो हाथ लगा सकते हैं, कोई आपके नंबर नहीं करेगा। मगर अब हम ऐसी चीज़ की तरफ जाते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, वो सिर्फ आपको तसव्वुर करना पड़ेगा। और ये भी चीज़ आपको समझनी है, सोचनी है कि हम कॉन्क्रीट चीज़ से, आधी चीज़ से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की तरफ जाते हैं, वो ज़रा मुश्किल का है। तो अब हम इंसानी यही चीज़ जो है, यही तजुर्बा इंसानी जहन की तरफ ले, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा, आपके भेजे के अंदर है, खुदा करे हो, भेजे के अंदर है, आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और उसकी भी फाउंडेशन के मुतालिक अब हम उसकी फाउंडेशन के मुतालिक कैसे सोचें? देखिए, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो बायोलॉजिकली उसका एक मगज़ तो होता है, कुछ ना कुछ तो वो साथ लेके आता है। तो फर्ज कीजिए एक जब बच्चा पैदा हुआ तो ये उसका मगज़ है। Think of it as a brain, child. और इस मगज़ के साथ आप चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। ज़ाहिर है बच्चा है वो सीखता है, आप तालीम हासिल करते हैं और आप कोई हुनर भी हासिल करते हैं। तो जो भी हम हुनर हासिल कर रहे हैं वो इस मगज़ के ऊपर ये मारता है। आप पोस्टमैन बन सकते हैं, आप मैकेनिक बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। ये सब चॉइसेस आपके पास हैं कि नहीं है? ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एक और चॉइस भी है। वो चॉइस ये है कि ये जो मगज़ है आपका, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो एनलाइटनमेंट है, उसको भी आप साथ साथ उसकी भी नशोनुमा करते जाएं। तो अगर ये आप पैदा हुए हैं, टाइम 0 है, तो टाइम 5 पे चाहे ये उतनी ही रहे, आपके मगज़ का हिस्सा है, ओके है कि चॉइस के नहीं है। मगज़ जो है वो पैदाइश के वक्त ही तो पूरा डेवलप नहीं होता ना, उसको भी तो डेवलप करने की जरूरत, इसीलिए आप लम लाए, वरना लम लाने की क्या जरूरत है ना। आप किसी मोटर मैकेनिक के उस पर बैठ जाते, छोटा जैसे होता है करें छोटे, तो वो छोटे को जब आप बिठा दें 3-4 साल की उम्र में, तो वो 15-20 साल की उम्र में तो ऐसा ज़बरदस्त मैकेनिक बन जाता है, वो तो आपकी कार को खोल खाल के दोबारा जोड़ देगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे, ठीक है। मगर अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो कुछ सवाल पूछना होगा कि मैं मज़ीद आगे पढ़ने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आप छोटे के पास तो नहीं जाएंगे, क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, लेकिन 3 लफ्ज़ है जो मैं यहाँ लिखता हूँ। यार वो
ان کا مائک نہیں چل رہا ہے چیک کر دے بندہ جھوٹ بول یہ رہا این آئی کیا تھا یہ پتہ نہیں کتنی دیر سے چل رہا ہے. والیوم چیک کام ہے تھوڑا سا یہ تو کروا دیں کسی کو ویسے لانچ ہو گیا گروپ کے ساتھ. آپ بتائیں ان میں کیا فرق ہے؟ یار میں جدھر بیٹھا ہوں اسٹوڈنٹ ادھر اتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ایگزٹ سے نکل جاتے ہیں دوست. کیوں بھائی؟ دیکھیں اگر آپ اس کو انگریزی میں ترجمہ کر لیں تو تھوڑا آپ کو آسانی سے معلوم ہوگا. چالاکی از کلیورنس. ٹھیک ہے, ٹو بی کلیور. اور ہوشیاری جو ہے از ٹو بی الرٹ. آپ ہوشیار ہیں. اور عقل مندی از وزڈم. تو جب آپ کو اصل گمبھیر سوال پوچھنے ہوں گے تو آپ چالاک اور ہوشیار شبد کے بعد نہیں جائیں گے. تو جن لوگوں کو مجبوراً سروائیول کے لیے اسٹریٹ سانگ, اور کچھ لوگ جو نالوں میں پلے ہوتے ہیں کافی معصومیت ان کی باقی رہتی ہے, وہ پھر لم سے جب نکلتے ہیں پھر وہ معصومیت کم ہونا چاہیے. دے آر لیٹ ڈیولپر, اٹس اوکے. مگر the point is this one. یہ جب آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے, you are acquiring wisdom. اس چھوٹے برین پہ جب آپ وہ چھوٹا جو میکینک بیٹھا ہوا ہے وہ بہت زبردست میکینک بن گیا. ڈیولپ So, this is your choice. آپ جو ہے اس میں سے کس کا چناؤ کریں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ محمد عامر پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ محمد عامر جو ہے وہ کبھی اسکول نہیں گیا, بہت زبردست کرکٹر بنا, ویری سپرلی ڈیولپڈ ڈائمینشن, لیکن اس کو یہ استعمال کرنا نہیں ہے. اس کو آپ ڈیولپ کر بھی لیں تو اس کو اچھی طرح استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ اور چیزیں ڈیولپ کرنی ہوں. یہ جو میرا ٹیلنٹ ہے اس کو میں ایسا طریقے سے کیسے استعمال کروں. جب آپ نے نہیں سیکھا تو پھر اس کو ذرا سا کوئی دھکا لگا, سمجھ گئے. تو یہ جو چوائس ہے آپ کے پاس, اس کو آپ جتنا جی چاہے آگے لے جا سکتے. یو کین ریچ دس پوائنٹ. اور اس پوائنٹ پہ چاہے آپ کا جو انڈیویجول ٹیلنٹ ہے وہ کتنا ہی رہے, لیٹ می میک اٹ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر آپ نے کتنا بھی ڈیولپ کر لیا, یو آر بیٹر آف دین دس. اور آپ کو یہ بھی سمجھ ہے کہ آپ میں تھوڑی صلاحیت ہے, مگر اس صلاحیت کو آپ استعمال کیسے کریں تاکہ وہ آپ کے لیے
फायदा मैंने बताया दूर होगा So this is the process of education. You have this choice. You can stay like this, and become a specialist in something. Accounting में हो गया, physics में हो गया, chemistry में हो गया, sports में हो गया, and you forget. आजकल बहुत जल्दी है लोगों को, बस मैं वकील बन जाऊँ, या मैं डॉक्टर बन जाऊँ, and you forget. आप बन तो जाएंगे, मगर फिर आप इसी तरह याद नहीं होगी। और ये जो है आपको मैंने बताया कि इसका खाली बड़ा होना जो है वो काफी नहीं। क्यों? यही बड़ा है, तो खोखला नहीं होना चाहिए, इधर उधर की चीजें जोड़ काट के नहीं, ठोस, सॉलिड, एब्सोल्युटली सॉलिड। और वो सॉलिड इस तरह होगा कि आप अपने उस्तादों से बात करें, अपने सीनियर से बात करें, जो एडवाइजरी यूनिट है उसके पास जाए, हर वक्त जाए। 12 शेर याद कर लेंगे तो डीन के पास भी आ सकते। सर मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, इसके साथ कौन सा कोर्स जो है वो मेरी तालीम को ठोस कर दे। So this is what you want. और उसके बाद फिर ये नहीं है कि आप इसको यहीं छोड़ दें, उसके बाद फिर आप इसको जहाँ तक आपका जी चाहे आप ले जाए। देखें कभी क्रिकेट के शौकीन जो हैं वो बहुत से देखें, जयवर्धने स्लिप पे खड़ा होगा, शक्ल से आपको लग रहा होगा आदमी सोच रहा है, मुस्तकिल उसका दिमाग चल रहा है। और कभी मैं उसको देखता था तो जिसने सानिया मिर्जा से शादी की, कैसे कप्तान बहुत अच्छा बैट्समैन है, कुछ भी हो, टीम हार रही हो, जीत रही हो, you cannot see his face very serious. But देखें आप, just go back किसी वीडियो क्लिप में जाए संगत है, उस सब लोग जो है कम से कम उन्होंने बीए किया हुआ, ऐसे नहीं है मोहम्मद आमिर के लोग, ब्रिलियंट क्रिकेटर, जीनियस, मगर क्यों मार खा गए? यहाँ से So you don't have to be like this. You have to be like this. और जब ये बन जाएगा तो ये खुद ब खुद जो है, because you will have many other dimensions. दीनी तालीम भी है, समाजी तालीम भी है, अदब की तालीम भी है। अदब में जो है बेतहाशा जो ये विजडम है वो हमारे अदब में शामिल हो चुके। कुछ भी पढ़ लें आप, बुल्ले शाह पढ़ लें, तो इसीलिए बजाय इसके कि आप खुद डिस्कवर करें, आपके लिए कोई शख्स ये बहुत बड़े बड़े जहन ये काम कर चुके हैं, बुल्ले शाह पढ़ लें, वारिस शाह पढ़ लें, गालिब पढ़ लें, ऐस पढ़ लें, तो अंग्रेजी इसको तो छोड़ ही दें, बड़ी पुरानी तारीख है। अभी तक लोग जो है वो सुकरात को और अरस्तू को याद करते हैं, 2000 सालों में क्यों करते हैं? देखिए वो ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं, ठीक है, कि वो आपको दोबारा से रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये मजमून जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ये मजमून आप लोगों के लिए मौजूद है, मगर कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, वो आप अपना जहन इस्तेमाल करेंगे। आप लम्स में भी आके जैसे रह सकते हैं, मैं जल्दी से बस गौ कर लूँगा, लेकिन आपको लम्स आके यहाँ है, फिर
become a solid lawyer, become a solid scientist, become a solid economist. जो शख्स कह रहा है मैं इकोनॉमिस्ट बनना चाहता हूँ और उसको यही नहीं पता कि समाज में हो क्या रहा है, गुर्बत क्यों है, क्लास क्यों है, हम क्यों इस हालत में क्यों, हम अगर ये करेंगे तो लोग इसके रद्देमल में क्या करें, इमरान खान क्यों इस्लामाबाद में, ये हमारी सियासत में क्या होती है, कौन समझेगा। जब तक कि आप सियासत नहीं पढ़ेंगे तो खुद ब खुद तो आपको समझ में नहीं आ जाएगी ना। खुद ब खुद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इसका वैसे ही जवाब देंगे जैसे वो छोटा जवाब देगा, उसमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं होगा। वो बगैर स्कूल के मिस्त्री बन गया है, आप स्कूल जाके मिस्त्री बन गए। वो मोटर का मैकेनिक बन गया है, जो डॉक्टर बन जाएंगे, वो जिस्म का मैकेनिक बन जाएंगे। सो ये लम्स की एक जो बढ़तरी है और इदारों पे, जैसे आमिर खान बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त इदारा है, गुलाम इसाक खान का इदारा भी बहुत अच्छा है, SM लॉ कॉलेज बहुत अच्छा है, मगर वो आपकी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहा। लम्स में आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते, इट्स अप टू यू, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। और एक तालीम की जो बहुत ख़ास बात है वो ये है, जो कि हम ये समझते हैं कि तालीम जो है बस कंटेंट जो है, मवाद उसको हासिल करना है और उसको याद करने का नहीं। तालीम ये है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला लें। आप हम साइंस करते करते देखें कहाँ चले गए, बिल्कुल वहाँ से सो समथिंग देयर हैज टू बी अ स्पार्क, और वो स्पार्क उसी वक्त होता है अगर आप वन डायमेंशनल होंगे, आपकी बस यही डायमेंशन होगी तो कभी स्पार्क नहीं होगा। स्पार्क तो दो चीज़ें अजीब लाते हैं तो स्पार्क होता है ना, तो आपकी ये चीज़ होगी और यहाँ आपकी एक और चीज़ होगी, तो इसमें और इसमें स्पार्क हो जाएगा, समझे। अगर यहाँ एक तीसरी चीज़ भी होगी तो इसमें और इसमें भी स्पार्क, जब वो स्पार्क होता है तब आपका इल्म जो है एकदम से तेजी से आगे बढ़ जाए, समझे, बात समझ में आई। तो ये बताएं कि ये एक लफ्ज़ है यूरेका, क्या मतलब? तो ये किसने कहा था? आर्किमिडीज हम उसे कहते हैं, और क्यों कहा था? तो आर्किमिडीज जब नहाने के लिए जब मैं बैठा लेटा तो उसने देखा कि कुछ पानी बाहर निकल, तो एकदम उसके जहन में स्पार्क हुआ। स्पार्क क्या हुआ कि ये तो उतना ही पानी होगा जितना मेरा हजम, इसकी वॉल्यूम मेरी वॉल्यूम के बराबर हो। एंड ही सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम दैट हैड बीन आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो प्रॉब्लम क्या थी? देखिए ये चीज़ है, ये डिब्बा है, इसकी क्या वॉल्यूम है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट्स अ रेगुलर ऑब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट दे दूँ जो बीच में से खोखला है, इसकी क्या वॉल्यूम? यू डोंट नो, देयर इज नो फॉर्मूला। सो दिस इज व्हाट आर्किमिडीज सॉ। इसको पानी में डालते हैं, जितना पानी डिस्प्लेस होगा, यूरेका, आई फाउंड इट, दैट्स द स्पार्क। ओके, तो ये you are here for those eureka moments. I found it.
And you will find these things if you develop this capacity to allow sparks. आप स्कूल ऑफ साइंस में हैं, आपका कोई स्पार्क होगा जब आप साइंस के अलावा भी कोई चीज़ डेवलप उसको डेवलप। अगर आप बस साइंस ही करते चले जाएंगे तो साइंसदान तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मगर वो स्पार्क की जो पॉसिबिलिटी है, इम्कान है उसको आप कम करें। That's what NUMS allows you. It allows you this ability to develop these multiple dimensions where these eureka moments. So you become more and more educated. And with every eureka moment, this thing gets bigger. When this gets bigger, this gets bigger. That is what education is. That is what is available. यहाँ पे आके ये नहीं सोचना है कि मैं लॉ स्कूल में आ गया हूँ, मैं बस जल्दी जल्दी लॉ कर लूँ और बाकी एक आध कोई आसान मजमून ले लूँ पूरा करने के लिए मेरी एक रिक्वायरमेंट है, एक इधर लेना है उधर लेना है, तो वो बुनियाद भी खोखली होगी, ठीक है, ठोस नहीं होगी और ये चीज़ें भी आपकी डेवलप नहीं होगी, स्पार्क भी नहीं होगा, फ्यूज हो जाएंगे आप बहुत जल्दी। और फिर ओके, ऑलराइट। तो अब जो है कुछ सवाल के जवाब, अब वो शुरू से आखिर में मुंतकिल कर दिया है जो हिस्सा सवाल जवाब का हिस्सा था। आपके कोई सवाल हैं तो मैं जवाब देने के लिए मौजूद हूँ, पूछिए। Sir, we have seen that most of the Asian countries are acquiring the Nobel Prizes every year, but Pakistan is not. What's the reason behind it? यार इतनी लंबी मैंने तकरीर की और जो है सवाल आपने फिर वही पूछा जो कि उसका मकसद ये है, उसका जो जवाब है वो यही है कि दिस इज वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग ब्रिलियंट इंजीनियर्स, ब्रिलियंट डॉक्टर्स, राइट, मगर उनको एंड फैंटास्टिक लॉयर्स एंड सुपर एंड क्लेवर अकाउंटेंट्स, मगर उनको बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा MRCP डॉक्टर आ जाए, उससे पूछूं भाई ये पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है इतनी, वो बस की आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आबादी बहुत ज़्यादा है तो कितनी आबादी पाकिस्तान की है, तो सर यही कोई वो 200 मिलियन होगी। हाँ, तो चीन की आबादी कितनी है, खत्म, ठीक है। उनका जो खत मोदी था वो तो फ्लैट हो गया, तो ये जो नोबेल प्राइज नहीं मिल रहे हैं, ये जो नोबेल प्राइज मिलने के लिए पहले जहन बहुत चाहिए, ओपन माइंड चाहिए, जिसमें वो यूरेका मोमेंट्स। नोबेल प्राइज तो ऐसे ही अगर आर्किमिडीज आजकल के ज़माने में होता तो उसे नोबेल प्राइज मिल गया होता, ठीक है। Because I found it. You have to find something, and you find something when there is a spark. मैं साइंस भी पढ़ी हुई है, अदब भी पढ़ा हुआ है, सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, नफ्सियात भी पढ़ी हुई है, वो सब चीज़ें जब आपने पढ़ी हुई होंगी तो स्पार्क होगा तो नोबेल प्राइज भी मिलेगा। ओके, सो ये जो सफ़र है, जो लम्स में आप कर सकते हैं, अगर आप वो सफ़र नहीं करेंगे, ये जो सफ़र है यहाँ से यहाँ तक आपकी कोई बुनियाद नहीं होगी, आप नहीं रह जाएंगे या
यहाँ रह जाएंगे या बुनियाद बड़ी करके खोखली कर लेंगे, राइट? तो आप शोहरत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, शरीक हयात भी हुआ, मगर नोबेल प्राइज मिलती। और बहुत से लोग ऐसे भी है कि नोबेल प्राइज की ज़रूरत क्या है? अगर शोहरत दौलत और शरीक हयात है तो नोबेल प्राइज को क्या कहना है? छोड़ो, बाहर में जाए, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। इट्स व्हाट ड्राइव्स। और जब ये जहन बड़ा होता जाता है तो बहुत सी चीज़ों की अहमियत कम होती जाती है। शोहरत दौलत तो आनी जानी चीज़ है यार। What have you contributed to the world? इस मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतनी अफलास है, आपने उसमें क्या किया? What is your contribution? आपका मकसद क्या था? मैं सबसे पहले ये सवाल पूछा था, मैं कौन हूँ, मैं क्यों? और उसकी आप और गहराई में नहीं जा सकते। ओरिएंटेशन में आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो मैं कौन हूँ, तो आगे उसने पूछा कि अगर मैं ना होता तो फिर मैं क्या हूँ? ऐसा इवन मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन, वो तो गहराई में बिल्कुल ही डूब गया। इस सवाल का जो जवाब है मेरा मकसद पता नहीं कोई ना कोई, इसलिए तो इस सफर में नहीं आए कि वो खाए पिए किसके पैदा हो गए, जिंदा रहे, एक नस्ल और आगे चला दी, मर गए। Not enough for something. That's something more you have to discover, that passion. हम क्यों आए थे? कहाँ से आए थे? क्यों आए थे? क्या करना है? किस लिए करना है? किसके लिए करना है? कैसे करना है? छीना झपट के कर लेना है या कोई तरीके से करना है? No choices. These are all decisions. You will face decisions every single day. और वो जो फैसले हैं वो अगर आपकी सिर्फ ये एक डायमेंशन होगी मोहम्मद आमिर की तरह, आप वो फैसले देंगे। You need multiple dimensions. You need an open mind. You need a big brain. You need a solid foundation. बुनियाद कुछ तो बुनियाद, ओके? और सेटअप दिखने का कॉस्ट क्या सॉलिड फाउंडेशन के लिए मैं ये वाले वहाँ तक जाना गया। इसके लिए आपके क्या ऐसी मेथोडोलॉजी साइंसेस को कैसे लें और क्या बता रहे हैं क्या देखिए सबसे पहले जो है ना आपका जहन खुला होना है। आप नाम ये फैसला करके नहीं आए कि बस मुझे तो ये करना है और बाकी सब चीज़ें बेकार। अगर वो बेकार होती, देखिए लम्ब पे 4 स्कूल हैं, सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? हाफ यूनिवर्सिटी इज द स्कूल, आधे तलबा और आधे असातिज़ा स्कूल में। तो ये इतना बड़ा हाथी जो है उसको ला के यहाँ खड़ा करने की क्या जरूरत है? अगर ये बेकार चीज़ थी तो सबसे बड़ा स्कूल बीच में ला के क्यों रखा? तो काफ़ी है, इंजीनियरिंग का स्कूल है, लॉ का स्कूल है, बिजनेस का स्कूल है, और भी जगह बहुत से हैं। ये सब टंटना जो है इसकी क्या जरूरत? यहाँ से वो चीज़ें निकलेंगी जो आपका स्पार्क जो है, सारा अदब यहाँ है, सारी हिकमत अदब के है। सोशियोलॉजी जो है, समाज को समझने की कुव्वत जो है, वो यहाँ तो ये मकसद नहीं है कि आप इंजीनियर मत बने और अकाउंटेंट मत बने, मगर ऐसे अकाउंटेंट बने, ऐसे वकील बने, ऐसे इंजीनियर बने जिनका ज़हन इतना डेवलप हो। ऐसे नहीं हो कि यहाँ पे है और ये आप अकाउंटेंट बने। That's what this school
office, and that is what you have to grab. आप स्टूडेंट एडवाइजरी यूनिट के पास हैं हर सेमेस्टर में, एवरी सेमेस्टर, एंड आस्क कि मैंने अब तक ये कर लिया है, अब मैं ये सोच रहा हूँ, आप मुझे बताएं सही सोच रहा हूँ, मुझे तब्दीली करनी चाहिए। आप ये करेंगे विद इन 2-3 years आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ बन गई है, अब इसको ज़्यादा ठोस करने के लिए मुझे और क्या चाहिए, उसके लिए भी अक्ल चाहिए होती है, आगे कुछ चीज़ पकड़ने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। मोहम्मद आमिर जो है उसको भी कि अब मैं ये क्रिकेटर तो बन गया हूँ, जैसे मैंने कहा था ना कि आदमी से इंसान बनना जो है वो बहुत लंबा सफर है कि नहीं, और क्या चाहिए, वो और ढूंढना जो है, और के लिए आपको यहाँ से कम से कम यहाँ तक पहुँचे, फिर आपकी समझ में आ जाए, फिर आप खुद कर रहे हैं, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, शिकायत है मुझे यार खुदा खुदा ने मकसद से सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं आप बर्बाद करने का क्या जो आपने भी हमें सारी बातें बताई हैं, तो क्या मुझे कोई साइड कि हमारा मगर इतना ही रह जाता है, लेकिन वो कंपार्टमेंटलाइज कर दिया हमने चीज़ ऑफ एजुकेशन को, ये आप हाईटेक कैडेट्स बना रहे हो अपनी क्वालिटी में, तो वो जो आपका इंसान का तरीका ही होगा उस पर देख सर जो एक खासबाजी या एक जानने की दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खासबाजी से एक शाहीन का सफ़र आज के दौर में हम समझते हैं जिस तरह से मेरे जैसे लोग जो हैं वो उनकी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने इकबाल ना पढ़ा हो, जिन्होंने इकबाल पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बातें हैं अनंत की, ये सब वहाँ शामिल है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से किए गए, मगर हम लोगों ने इसी वजह से ये सोच लिया है कि ये शायरी जो है ये बेकार, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा, जब नहीं पढ़ा तो फिर वो मेरे जैसे लोगों के लिए रोज़ी खाना तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इकबाल को पढ़ के क्या सही कह रहे हैं, तो वही सफ़र तो वही है, आपको यहाँ से वहाँ, तो उसका क्या तरीका है, कैसे जाना है, वो यही तरीका है कि आप अपना जहन जो है उसको बंद नहीं करते, जैसे आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कंपार्टमेंटलाइज, ठीक है, उसको ये नहीं करेंगे तोड़ दें, बस मुझे तो ये करना है और इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर आप उस चीज़ में तो बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन वो सलाहियत जो है एक से दूसरी चीज़ आइडिया आना वो आगे नहीं आ सकता, वो नज़र की वसत जो है जो शायद ऊपर से देखता है, बर्ड्स आई व्यू के लिए ऊपर से जाने की ज़रूरत है ना, पहले ज़मीन पे बैठ के तो बर्ड्स आई व्यू नहीं आएगा, परवाज़ की ज़रूरत है, परवाज़ को ऐसे ही आदमी करता है कि वो पहले आगे चलता है, फड़फड़ाता है, कभी आपने देखा होगा कि परिंदे को बड़े गिर को देखे भागता है, फिर ऐसे फड़फड़ाता है, फिर वो ऊपर जाता है, आप ऐसे तो नहीं, तो ये 4 साल यही है, आप वो चीज़ें जमा कर रहे हैं, अपने पास भिलाना सीख रहे हैं, भागना सीख रहे हैं, इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम इफ यू कीप योर माइंड ओपन।
रहे हैं ये करें, लेकिन हमें वो कौन सिखाए, क्योंकि मदरसे तो है नहीं, तरबियत तो चली नहीं, तो वो हमें कहाँ से सीखेंगे? वो आपको लम्ब में मिलेगा। लेकिन गुरबानी सेंटर और लैंग्वेजेस उसके अलावा हमारे सोशियोलॉजी के प्रोग्राम में इकबाल कंपेयर टू हमारे फलसफे का जो डिपार्टमेंट है तो सब चीज़ें मौजूद हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ये तलाश करें कि ये चीज़ हमारे कम है, ये डायमेंशन यहाँ ये है ही नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशन की इतनी सी होकर रह गई, ठीक है? इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। तो इकबाल कितना दर्द हो गया। इसी वजह से हम बड़े बड़े कॉम्पिटिटर वर्सेस में इंडिया बन जाते हैं। आदमी को भी बेहतर आप लोग माशाल्लाह बहुत जमीन है। Absolutely thrilled, absolutely delighted. You're fantastic. Just make use of the whole world. All right. Okay, folks.